نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے بیچ 2 لیکچر نمبر 14 میں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور برکت سے ہم 14 لیکچر پر پہنچ گئے ہیں. آج کے ہمارے ٹاپک ہیں، ہم پڑھیں گے اسماء اشارہ، اور پھر ہم آج ایک نیا مرکب سیکھیں گے، مرکب اشاری ڈیمانسٹریٹو ناؤن. پریویس لیکچر نمبر 13 میں ہم نے مرکبات ناقصہ کو سٹارٹ کیا تھا، اور ہم نے پہلا مرکب پڑھا تھا مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، صفت اور موصوف. صفت اسم کے 4 اسپیکٹس میں جنس، جینڈر، عدد، نمبر، وسعت، کیپیسٹی، اعراب، سٹیٹس میں اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے. موصوف جو ہے غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آئے گی. نام سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں اشارہ کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں. ہم نے مرکب ناقص سٹارٹ کیے تھے تو ہم نے 4 مرکبات اس میں دیکھے تھے کہ 4 طرح کے مرکبات ناقصہ آتے ہیں. پہلا ہم نے مرکب توصیفی کیا، ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو مرکب توصیفی کہلاتا ہے. مرکب اشاری، ایسا مرکب ناقص جس میں اشارے کے لیے لفظ استعمال کیا جائے مرکب اشاری کہلاتا ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کا مرکب اشاری. یعنی ہم نے 2 طرح سے اسم اشارہ کو پڑھے تھے، قریب اور بعید. ٹھیک ہے، دوسرے کالم میں دیکھیں جنس کے حساب سے اشارے آئیں گے. اس کے بعد عدد دیکھیں گے، واحد، مثنیٰ اور جمع. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم قریب کے اشارے دیکھتے ہیں. مذکر کے لیے واحد مذکر کے لیے اشارہ آئے گا ہذا، ٹرانسلیشن کیا ہوگی یہ. مثنیٰ ہذانی، یہ دونوں. جمع ہؤلائی، یہ سب. مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے دیکھے گا ہذہ، یہ. ہاتانی، یہ دونوں. ہؤلائی، یہ سب. ٹھیک ہے، جمع میں دیکھیں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی یوز ہوگا اشارہ ہؤلائی. اشارہ بعید مذکر کے لیے دیکھے گا پہلے واحد، ذالکا، وہ. ذانکا، وہ دونوں. اولائکا، وہ سب. مؤنث کے لیے تلکا، وہ. تانکا، وہ دونوں. اولائکا، وہ سب. ٹھیک، تو یہ تھے اسماء اشارہ کا چارٹ ہے. اور یاد ہم نے کیسے رکھنا ہے کہ جو اب ہمارے سامنے ہے سے شروع ہونے والے اسماء اشارہ آئیں گے تو ہمیں فوراً کلک کر جانا چاہیے کہ یہ قریب کے اسماء اشارہ ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم دیکھیں گے کہ اسم اشارہ کاف پر ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دور کا اسم اشارہ ہے. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ مثنیٰ کے ان کی نصب و جر بنے گی. اب ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے بنے گی. تو سب سے پہلے واحد، مثنیٰ اور جمع. اب مثنیٰ والے کالم کو میں نے کلر کر دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. واحد کو دیکھیے گا ہذا. مثنیٰ ہم نے اس کی کیا پڑھی تھی، جو حالت رفع کی تھی. جو پچھلا پورا چارٹ تھا نا آپ کا، وہ مرفوع کا چارٹ تھا. ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں تھے یہاں پہ. اب یہاں دیکھیں ہذا، یہ حالت رفع میں ہے اور اس کی مثنیٰ تھی ہذانی. تو اب نصب اور جر کیسے بنے گی، ہذینی، آنی، عینی، عینی. دیکھیں اسی حساب سے یہ چینج ہوا نا.
और जमा क्या रहेगी? हाउलाई। अब हाज़िही नस्ब और जर में ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि मबनी है। और मुसन्ना में कैसे आएगा? हातानी था, तो वो हो जाएगा हातईनी, ये नस्ब और जर होगी इसकी। और हाउलाई सेम रहेगा नस्ब और जर में भी। आगे देखें, ज़ालिका नस्ब और जर में उसी तरह आया, क्योंकि हमने कहा कि ये मबनी होते हैं वाहिद और जमा के। तो मुसन्ना क्या था? ज़ानिका। तो आप नस्ब और जर में कैसे लिखेंगे? ज़ैनिका। और जमा उलाइका। तिलका नस्ब और जर में इसी तरह रहेगा। तानिका इसकी मुसन्ना थी हालत रफ़ा की, तो नस्ब और जर क्या बनी? तईनिका। और जमा उलाइका। अब जो ये चार्ट है आपका, ये अस्मा इशारा इस वक्त हालत नस्ब और जर के हैं, ठीक है? पिछला मरफू अस्मा इशारा का चार्ट था और ये नस्ब और जर में इस तरह से आएगा, क्योंकि वाहिद और जमा के जो अस्मा इशारा हैं ये मबनी हैं, तो इन्होंने अपनी शक्ल नहीं बदली, लेकिन हम इन्हें यहाँ पर हालत रफा और हालत नस्ब और जर में ही कंसिडर करेंगे। मुसन्ना ने अपनी शक्ल चेंज कर ली थी, वो आपके सामने है। अब इसको मैं एक फ्लो में पढ़ देती हूँ आपके सामने। अस्मा इशारा नस्ब और जर में, हाज़ा हाज़ैनी हाउलाई हाज़िही हातैनी हाउलाई ज़ालिका ज़ैनिका उलाइका तिल्का तैनिका उलाइका। नेक्स्ट, ये जो ग्रीन कॉलम में है आपके सामने, ये नस्ब और जर के जब चेंज होने के बाद आपके सामने ऐसे आएंगे, ठीक है? आपके सामने आया है ये कलम, ये कलम क्या लग रहा है? ये मुरक्कब ताम है या नाकिस? जी हाँ, ये मुरक्कब नाकिस है, क्योंकि बात इनकम्प्लीट है। हमें बात का मफ़हूम समझ नहीं आ रहा, ठीक है? बात अधूरी है यहाँ पर, ये कलम। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या है स्टेटमेंट पूरी। ये ये क्या है? ये इशारा है, ठीक है? इशारे के लिए आया है लफ्ज़। और कलम, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है? तो अब आप देखें, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये यानी इशारा, ये कहलाएगा इशारा। और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इसे कहेंगे मुशारुन लह, ठीक है? यानी इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है? तो ये कलम क्या है? ये मुरक्कब नाकिस है। यहाँ आपने याद रखना है कि मुरक्कब इशारी, इशारा और मुशारुन लह से मिलकर बनता है, यानी ऐसा मुरक्कब जिसमें इशारे का इस्तेमाल हो, मुरक्कब इशारी कहलाता है। नेक्स्ट, ये लड़का। अब मैंने कह दिया ये लड़का, अब मैं अगर खामोश हो जाऊं तो क्या आपको बात पूरी समझ आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इनकम्प्लीट बात की है आपके सामने। मेरी बात का जो मतलब है, मफहूम है, वो आप नहीं समझ पाएंगी। तो ये मुरक्कब नाकिस है, ठीक है? इसे हम जुमला नहीं कहेंगे, ठीक है? ये दो अल्फाज का मजमूआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये जुमला नहीं कहलाएगा, क्योंकि बात नामुकम्मल है, बात अधूरी है, इनकम्प्लीट है। ये लड़का, इसके बाद हमारे पास कोई खबर नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इस लड़के के बारे में मैं को कुछ बताना चाहिए ना, फिर ही बात मुकम्मल होगी, खबर आएगी। मुब्तदा और खबर मिलकर ही मुरक्कब ताम बनाएँगे, बात मुकम्मल होगी। आपको कौन उसमें मफ़हूम समझ आएगा कि हमें क्या कहा गया है, फिर वो जुमला बनेगा। तो अगर मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लड़का नेक है, तो क्या मतलब है? यानी अब मैंने आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। आपको पूरी बात समझा दी कि ये लड़का नेक है। आगे देखते हैं।
अब इसमें ये क्या है, ये इशारा है, ठीक, और लड़का इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये इशारा और लड़का मुशारुन अलैह कहलाए। तो ये लड़का मुरक्कब नाकिस है। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये लड़का मुरक्कब नाकिस है, ये हम समझ गए हैं। ये की वजह से हमने इसको पहचाना कि यहाँ इशारा इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मुरक्कब इशारी है। स्टेप 1 क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि हम इशारा तो हमें मालूम है, हम फ़ौरन से जो है ना, जब भी हमारे सामने कोई इस तरह से एक मुरक्कब नाक़िस आएगा जिसमें इशारा इस्तेमाल हो रहा होगा ना, तो हम तो फ़ौरन से उसके साथ लगा देंगे हाज़ा, हाज़िही, हाज़ा, कुछ भी, ठीक है? अब जब हम इसकी अरेबिक कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, तो हमने उसको बहुत ध्यान से करना है और ये बहुत सिंपल है। लेकिन जैसे उर्दू में इशारा पहले आ रहा है और मुशारुन अलैह बाद में, इसी तरह अरेबिक में भी इशारा पहले आएगा और मुशारुन अलैह बाद में आएगा, ठीक? इसके बाद जब हमने मुरक्कब तौसीफ़ी बनाया था, तो हमने मौसूफ़ और सिफ़्त में इस्म के जो 4 एस्पेक्ट्स थे, उनमें मुताबिकत रखी थी। अब यहाँ भी वैसे ही मुताबिकत होगी, ठीक है? सिर्फ़ हमें एक पहलू में पार्शियली मुताबिकत करनी पड़ेगी कि हम, क्योंकि अस्मा इशारा मारफ़ा है, तो मुशारुन अलैह को भी हम मारफ़ा ही लेकर आएँगे उसके साथ, ठीक? अब बाकी जो 3 पहलू जिन्स, अदद और आप, और उसमें भी मुताबिकत होगी। तो अब मुरक्कब इशारी कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम सबसे पहले मुशारुन अलैह को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, जो अस्मा इशारा है ना या इसम इशारा लेकर आना, तो वो हम आसानी से ले आएँगे। सबसे पहले हम अपने मुशारुन अलैह यानी लड़का, इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये हमें कैसे बने। तो जब हमारे सामने, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये आया ना इशारा, तो हमारे ज़हन में ये के लिए सबसे पहले अस्मा इशारा में से हाज़ा आ जाएगा, तो हम फ़ौरन से हाज़ा लगा देंगे। तो हमने ये काम नहीं करना, ठीक है? हमें मुताबिकत पैदा करनी है मुशारुन अलैह और इशारे में। किस-किस एस्पेक्ट में? जिन्स, जेंडर, नंबर n, ठीक है? और स्टेटस एराब में। और मुशारुन अलैह जो है, क्योंकि अस्माए इशारा मारफ़ा है, तो मुशारुन अलैह भी मारफ़ा लेना है। अब सबसे पहले मैं लड़के की अरबी लिखती हूँ आपके सामने। लड़के की अरबी क्या वोकैब्युलरी ले लेते हैं, अल वलद। अभी मैंने इस पर एराब नहीं लगाया, ठीक है? अल वलद, अब मैं एराब क्या इस पे लगा रही हूँ, मैंने इसको रफ़ा कर दिया, ठीक है? पहले हम रफ़ा की कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैंने इस पर पेश लगा ली। अब हम जब अपने अस्मा इशारा को देखेंगे, ठीक है? अब हम अस्मा इशारा के चार्ट को जब देखेंगे, तो हम अल वलद दू के हिसाब से अपना कोई इस्म इशारा लेकर आएँगे। इसको मैंने रफ़ा इसलिए रखा कि हम अभी बेसिक कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, तो हम जो जब भी इस्म आता है आपके सामने, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस वक़्त रफ़ा होता है। तो अल वलदु वाहिद है, मुज़क्कर है। जब हम इसम इशारा का चार्ट देखेंगे, तो हमें वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन-सा इशारा मिलेगा वहाँ पर? हमें मिलेगा हाज़ा, ठीक है? हमें वहाँ मिल जाएगा हाज़ा। अब हम हाज़ा ले आएँगे, तो ये बन जाएगा हमारा मुरक्कब। अब हम इनके नाम देखिए, हाज़ा ये हो गया इशारा और अल वलदु आपका मुशारुन अलैह, ठीक है? अब जब हम इशारा लेकर आए हैं, तो हमने अल वलदु को पूरा अपने माइंड में रखा था। हमने उसकी जीन्स देखी थी, मुज़क्कर है, तो हमने इशारा भी मुज़क्कर का लेकर आना है।
हमने अदद देखा कि अदद उसका वाहिद है, तो हमें इशारा भी वाहिद लेकर आना था। इसी तरह हमने उसकी एराब देखा कि हमारा अल वलदु हालत रफ़ा में है, तो हमारा जो इशारा है वो भी मरफ़ू होना चाहिए, ठीक है? थर्ड, हमारा जो इशारा है, ठीक है? वो मारफ़ा है। जो अस्मा इशारा है वो मारफा के अक़साम में से एक है ना, तो फिर हमें अपना मुशारुन लिलैह भी मारफा लाना था ना, तो इसलिए हम यहाँ पर मौरिफ बिल लाम इसम लेकर आए हैं, ठीक है? तो स्टेप 3 में हमने क्या रूल फॉलो करना है कि मुशारुन लिलैह अपने इशारे की पैरवी करता है, ठीक है? आगे देखिएगा, ये किन-किन एस्पेक्ट में करता है? जिन्स, अदद और आप में मुताबिकत होती है और वुसअत को हम जो है मुशारुन इलैह की वुसअत इशारे के हिसाब से ले आते हैं कि मारफा हो। अब जब आपको सारा कुछ मिल गया तो आपका मुरक्कब नाकिस क्या तैयार हुआ? हाज़ल वलदु, दिस बॉय। अल वलदु था, जब उसे पीछे से मिलाकर हमने पढ़ा, तो अल वलदु का जो हमज़ातुल वस्ल था, उसकी हरकत ड्रॉप हो गई है, ठीक है? तो आपका पहला मुरक्कब तैयार हो गया। हाज़ल वलदु, इसकी अब एराबी हालत क्या है? ये हालत रफ़ा में है, ठीक है? यहाँ एक पॉइंट लिखिएगा कि आपको मुरक्कब इशारी का एराब मुशारुन लह से मालूम होता है। देखिएगा, आपके सामने मुशारुन लह हालत रफ़ा में है, ठीक है? तो अब आप क्या कहेंगी कि आपका जो मुरक्कब इशारी है मरफ़ू है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पेश की जगह अगर मैं यहाँ पर फ़तहा ले आती हूँ, ज़बर ले आती हूँ, हाज़ल वलादा, ठीक है? तो यहाँ नीचे कर लेते हैं चलें, हाज़ल वलादा। अब इसका इराब क्या होगा? अब ये मंसूब कहलाएगा क्योंकि मुशारुन लह मंसूब है, ठीक है? अगर मैं इसका इराब मजरूर कर देती हूँ मुशारुन लह का, तो ये हो जाएगा हाज़ल वलदी। अब मुशारुन लह क्योंकि मजरूर हो गया, तो इसीलिए पूरा मुरक्कब भी मजरूर हो जाएगा। आई होप कि आपने इस पॉइंट को समझा होगा कि हम मुरक्कब इशारी का जो एराब है मुशारुन अलह से पहचानेंगे। देखिए, वजह क्या है कि वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी है, तो हमें तो उससे आइडिया नहीं होगा, ठीक है? हाँ, जब मुसन्ना के आएँगे तो वहाँ हम समझ सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ पर जो हमारा मुरक्कब इशारी है, वो या तो नस्ब में है या जर में है और वो जो पीछे आने वाले फैक्टर्स हैं ना, वो हमें बता देंगे कि ये किस वजह से नस्ब और जर में क्या है। गॉट इट? आगे चलते हैं। ये लड़की, सेम उसी तरह चलेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। पहले हम देखते हैं अपने इसको कि ये मुरक्कब नाकिस है। अब हम अपने मुशारुन लह की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लड़की के लिए वोकैब्युलरी आती है बिंतुन, ठीक है? अब बिंतुन वोकैब्युलरी है नकरा में, लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते हैं क्योंकि अस्मा इशारा मार्फा है, तो हमें अपना मुशारुन लह भी मार्फा लेकर आना है। तो बिंतु से हो जाएगा, हम उसकी जब वोकैब्युलरी बनाएँगे तो वो हो जाएगी अल बिंतु, ठीक है? अब मैंने इसको हालत रफ़ा में रखा है, अल बिंतु। अल बिंतु इसकी जिन्स मुअन्नस अदद वाहिद और इसका इराब रफ़ा है, ठीक है? तो हम वाहिद मुअन्नस के लिए कौन-सा इशारा लेकर आएँगे? हाज़िही, ठीक है? तो हाज़िही इशारा और अल बिंतु मुशारुन इलैह। तो आपका मतलब क्या कंस्ट्रक्ट हुआ? हाज़िहिल बिंतु। अच्छा, यहाँ पे इसको जो हमारी हाँ के नीचे खड़ी ज़ेर आ रही है, ये सिंपल ज़ेर में चेंज होगी जब हम मिलाएँगे, ठीक है? जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे, तो ये सिंपल जो ज़ेर आती है, उसमें चेंज हो जाएगी। हाज़िहिल बिंतु, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। अब 2 मुरक्कब आपके कंस्ट्रक्ट हो गए हैं। हम आई होप कि आप आगे कर सकती हैं। तो ये आपका मुरक्कब इशारी तैयार हो गया।
अब मेरे पास पॉइंट्स हैं, इनको नोट कीजिएगा प्लीज। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्मा इशारा इस्तेमाल हो मुरक्कब इशारी कहलाता है। तमाम अस्मा इशारा मारफा होते हैं। वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये 3 पॉइंट्स नोट कर लें। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें अस्मा इशारा इस्तेमाल हो मुरक्कब इशारी कहलाता है। अस्मा इशारा मारफा होते हैं और वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी होते हैं। इशारा और मुशारा जिन्स, अदद और एराब में देखिएगा इशारा और मुशारुलह में मुताबिकत होती है और वुसअत में मुशारुलह अपने इशारे की तरफ लीड करता है। यानी जो मुशारुलह है वो वुसअत के लिए इशारे के साथ जाता है, क्योंकि हमारा इशारा मारफा है तो हमें मुशारुलह भी मौरिफ बिल नाम इसम लेकर आता है। चले जी, यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस है, अगर आप लोग करना चाहती हैं तो आ जाइए ताकि मैं आप लोगों को दे दूँ साथ में। ओके, आइए ईमान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ईमान, देखिएगा हमें वाहिद, मुसन्ना और जमा बनानी है। ठीक है, फिर हमें उनकी रफा, नसब और जर। ठीक है, पहले मैं आपको रफा में एक मुरक्कब इशारी दूंगी और फिर आप उसको करेंगे। हाजल मुस्लिमून, हाजा क्या है ईमान? हाजा मैम हालत रफा में है हम्म, और और ये मुरक्कब नाकिस है। जी, अल हाजल मुस्लिम, क्या है? अल मुस्लिम मारफा है। बिल्कुल मारफा है, लेकिन हाजा के हाँ, बाद देखें, इशारे के बाद क्या आएगा ईमान? मुशारुन इलैह, जी, तो अल मुस्लिमू क्या हुआ आपका? ये मुशारुन इलैह हुआ। ठीक हो गया। अब अल मुस्लिमू मौरिफ बिलाम इसम क्यों आया इधर? क्योंकि हाजा भी मारफा है, हम्म, इसलिए हम्म, अल मुस्लिम तो भी मारफा आएगा। ठीक हो गया। अब मुशारुल अपने इशारे को वुसअत में उसकी तरफ लीड करेगा कि जो इशारे की वुसअत होगी वही मुशारुल की होगी। ठीक है, अब इसकी जी, मुसन्ना बनाइए प्लीज। क्या बनाऊं मैम? मुसन्ना, अभी आप देखिए मुसन्ना, सबसे पहले जी लेटर्स होगा वो रफा होगा। ठीक है, तो हाजल मुस्लिमु, जी ये हालत रफा में आपका ये मुरक्कब। जी। आगे कीजिए इसको। हाँ, वो अभी पहले आपने सिखाया था हाजा ही नहीं। नो, अभी रफा में है ना, तो हाजा जी, हाजानी। अब हाजानी, बताइए। जी जी, हाजानी मुस्लिमानी, हाजानिल मुस्लिमानी। मुस्लिमानी, ठीक जी है, नून को मिलाएंगे ना आगे इसके मौरिफ बिल नाम से। जी, हाजानी मुस्लिमानी, जी। जमा बनाइए। जमा हाउलाई मुस्लिमूना, जी, पढ़िए अब। ये सब मुसलमान। जी, दोबारा मिलाकर पढ़े ना, हाउलाइल मुस्लिमूना। हाउलाइल मुस्लिमूना, ठीक है। ओके, अब आपने इनकी नसब बनानी है। चले कीजिए हालत नसब में हाजल मुस्लिम। वो आपने सिखाया था वही ना। हम्म, हाज हाजैनी मुस्लिमैनी, तो देखें, वाहिद है ना। नहीं ये रफा में है, मेरी बात, कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आप बात समझे। आपने यहाँ याद रखना है कि जो वाहिद और जमा के अस्मा इशारा है वो रफा, नसब और जर में एक जैसे दिखेंगे। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, मबनी है, मबनी का मतलब है ये तीनों हालतों में इसी तरह लिखे जाएंगे। हाजा, नसब में भी हाजा रहेगा और जर में भी सेम इसी तरह। जब आप जमा के तरफ जाती हैं तो हा उलाई रफा में भी हा उलाई रहेगा और नसब और जर में भी आपको इसी तरह नजर आएगा। ठीक है, सिर्फ चेंज जी कहाँ आएगा? आपके मुसन्ना वाले इशारा में। ठीक है, अब जी बनाइए, जी। नसब कीजिए इसको। हाजल मुस्लिमा, हाँ, हाजल मुस्लिमा। देखें, हमने
मुरक्कब इशारी का एराब मुशारुन अलैह से पहचानना है। जी, जी, अब यहाँ अब देखिए समझ अल में आ गया। मुस्लिमू था तो हालत रफ़ा में था। इधर आ गया जी, आपका जो मुरक्कब इशारी यहाँ पर जी। हालत नस्ब में आ गया, ठीक है? जी, कीजिए आगे। अ, हाँ, अब यहाँ पे वो आएगा हाज़ैनी मुस्लिमैनी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आएगा। आप मुसन्ना बनाए ना नस्ब में कैसे बिल्कुल ठीक जी, बताया। हाज़ैनी मुस्लिमैनी, गुड। हाज़ैनिल मुस्लिमैनी। हाँ, हाँ, जी, ज़ैनिल मुस्लिमैनी, गुड गर्ल। अब जमा बना दीजिए इसकी, इस मुरक्कब की। उला हुँ, हाउलाइल हुँ। हाउलाइल मुस्लिमूना। देखें, आपने पीछे मुसन्ना में चेंज किया ना मुशारुन अलैह को, तो आप जमा में भी जी, करें। देखें, आपके सामने आ रहा है हाउलाई हाउलाइल मुस्लिमीना। देखिए ईमान, जी, इशारा आपका इस वक़्त हालत नस्ब में ही है और मुशारुन अलैह भी आगे नस्ब में गया है। इशारा हमें इसलिए जी, चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो मबनी है इसलिए उसने अपनी शक्ल नहीं बदली, लेकिन आप उसे कंसीडर मंसूब ही करेंगी। समझी बात? जी, हाउलाइल मुस्लिमीन। हाँ, अब जर के समझ के बनाइएगा, ठीक है? चलिए, हालत जर में लेके जाइए इसी मुरक्कब को। हाज़ल मुस्लिमी, गुड। अब मुसन्ना बनाइए। हाज़ैनी मुस्लिमैनी, वेरी गुड। जमा कर दीजिए। हाउलाइल मुस्लिमीना। वेरी गुड। आप बात समझी? बस पॉइंट जी, आपने जी, क्या मैं याद समझ। रखना है कि आपने मुरक्कब इशारी में एराब सबसे पहले पहचानना है मुशारुन अलैह से। आपके जी, ज़हन में होना चाहिए कि वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी है, तो ये मुझे रफ़ा नस्ब जर में सेम दिखेंगे, ठीक है? जी, जी, अब आप कैसे पहचानेंगी? मुशारुन अलैह से। अभी अगर जी, आपके सामने मैं यहाँ पे ये जो नस्ब ज़र आ रहा है इसको हाइड कर दूँ, ठीक है? तो आपको पूछा जाए कि हाउलाइल मुस्लिमीना इसकी इराबी हालत क्या है? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है ये नस्ब और जर में है, ठीक है? क्योंकि अभी हमें जी, कन्फर्म नहीं है ना, पीछे रीज़न क्या है कि जी, नस्ब में क्यों गया है या जर में क्यों जा रहा है, ठीक है? जी मैम। ओके, चलें, बारकल्लाहु फ़ीकी, वेरी गुड। कोशिश करते जज़ाकल्लाह। रहें और वही है कि अमीना जी आ जाइए प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, समीना जी, अब इसी की जो है मुअन्नस बनेगी, तो प्लीज़ मुअन्नस बनाएँगी ज़रा आप? हाज़ल मुस्लिमों की। जी, हादिहिल मुस्लिमतु हादिहिल मुस्लिमतु गुड, वेरी गुड। अब डुअल बना दीजिए इसका। हादिहि हा हुँ, हादैनी हुँ, हादैनिल मुस्लिमतैनी। जी प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, समीना जी, अब इसी की जो है मुअन्नस बनेगी, तो प्लीज़ मुअन्नस बनाएँगी ज़रा आप? हाज़ल मुस्लिमों की। जी, हादिहिल मुस्लिमतु हादिहिल मुस्लिमतु गुड, वेरी गुड। अब डुअल बना दीजिए इसका। हादिहि हा हुँ, हादैनी हुँ। हादैनिल मुस्लिमतैनी हादिहि रफ़ा कर हातानी दें ताकि हम मुस्लिमतानी हुँ, ठीक है। आगे जमा बनाइए। हाउलाई हुँ, अल मुस्लिमातुन हुँ, ठीक है। अल-मुस्लिम। हाउलाई मुस्लिमातुन ओके, अब इसी को नस्ब में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगी अब बताइए? हाजिही वैसे अल मुस्लिमतु अल मुस्लिमता हो जाए गुड, बनाइए प्लीज़। हादिहिल मुस्लिमता गुड,
मुसन्ना। अब नसब में जाना हाथ आपने, ठीक है? जी हातैनी मुस्लिमतैनी जी, मिलाकर पढ़िए प्लीज अब। हातैनिल मुस्लिमतैनी गुड। जमा। हाउलाइल मुस्लिमात मुस्लिमाती मुस्लिमाती। गुड। जर में कीजिए अब इसको। हाजिहिल मुस्लिमती नेक्स्ट। हातैनिल मुस्लिमतैनी गुड। नेक्स्ट। हाउलाइल मुस्लिमाती वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, एक बार आप ट्रांसलेशन करेंगी हाजल मुस्लिमु की। आप म्यूट हो गई हैं सुमेरा जी। चलें सुमेरा, आप कीजिएगा। आइए सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले, मैं आपसे 2-3 इसमें से मुरक्कब पूछती हूँ, आप मुझे उनकी ट्रांसलेशन बताइएगा। हाजल जी। मुस्लिम। हाज़ल मुस्लिमू, हम्म वो एक मुसलमान। देखिए, एक क्यों आया? इसको करना, एक क्यों आया सोचिए। एक आना चाहिए था क्या? नहीं ना। मरकब नाकिस नहीं, नहीं ना मैम, मरकब नाकिस में वो मुसलमान। ठीक है। और एक तो तब आएगा ना जब हमारे पास नकरा होता है, इस तरह नहीं जी आएगा। जी जी। रखिएगा। ओके, अब आप मुझे बताइए हाज़ैनिल मुस्लिमैनी। हाज़ैनी मुस्लिमैनी, हम्म वो वो दो मुसलमान। देखें, वो क्यों कर रही हैं आप? नहीं, दो मुसलमान, देखिए, ये दो मुसलमान, हाज़ल ये मुस्लिम, दो मुसलमान। हाज़ल मुस्लिम को क्या करना है? देखें, हा से शुरू होने वाले आपके करीब के हैं, ठीक है? तो जी, हाज़ल मुस्लिम, ये मुसलमान। ये मुसलमान। अब डुअल में चले गए हम, हाज़ैनिल मुस्लिमैनी, तो बताइए। ये दो मुसलमान। ये दो मुसलमान। गुड। ठीक है। तो अब कीजिए हाज़िहिल मुस्लिमता। ये मुसलमान। बिल्कुल, ये मुसलमान, देखिए, एक नहीं लाना आपने, हम नकरा में ये नहीं ना जा मुसलमान। रहे। ठीक है, इस बात को जी ज़हन जी। में। ओके। हाउलाई मुस्लिमाती। ये दो मुसलमान। हाउलाई मुस्लिमात। मोहन्नस। मेरा पेन देखिए इधर नीचे, जमा में मैं चली गई हूँ, येलो ये रोल सब देखिए। मुसलमान ये सब मुसलमान औरतें, ठीक है, या मुअन्नस लिख ली। औरतें। जी जी। ठीक है, औरतें। औरतों की बात हो रही है ना, तो ये सब जी जी। मुसलमान। ट्रांसलेशन में आपने मुरक्कब नाकिस की तरह ही ट्रांसलेशन करनी है, पहले इशारा और फिर मुशारुन अलैह। अब क्योंकि हमारा मुशारुन अलैह मुअर्रफ बिल लाम इसम है, तो हम उसकी उसी तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, हम नकरा नहीं लेकर आएंगे एक या तरह से, ठीक है? फिर हाजानिल मुस्लिमानी, हाजानिल मुस्लिमानी, ये दो मुसलमान। हाउलाइल मुस्लिमूना, ये सब मुसलमान मर्द, ठीक है? तो ऐसे इसको आप करते जी जाएंगे। अब आप आगे ठीक ठीक। देखिएगा। अब दूर का है मेरे पास, ठीक है, चार्ट हमने अब दूर का करना है। दालिकल मुस्लिमू, दालिका क्या है सुमेरा? दूर के लिए दूर के लिए। ठीक है। इशारा बैद। हाँ, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है या मुअन्नस के लिए? मुजक्कर के लिए। गुड हो गया। अल मुस्लिमू क्या है? मारफा है और हम्म मुशारिन इलेह है। बस पहले कहेंगे मुशारिन। मुशारुन अलैह है, ठीक है? मुशारुन जी अलैह, और इसकी वुसअत जो है, मुशारुन अलैह वुसअत में अपने इशारा को फॉलो करता है, जी। ठीक है? और जिन्स, अदद और एराब में इनमें मुताबिकत पाई जाती है। अब इसकी डुअल बना दीजिए। जानिका मुस्लिमानी, जानिकल मुस्लिमानी। जमा। हा उला, हा उला इल मुस्लिमूना। गुड। अब ये तीनों आपके हालत रफा के आगे। ट्रांसलेशन कीजिएगा जरा, जालिकल मुस्लिमून।
वो मुसलमान मर्द, वो हम्म, 2 मुसलमान मर्द, वो सब मुसलमान मर्द। गुड। आप नसब में ले जाए इसको। हाज़ल मुस्लिमा, हम्म, सॉरी, ज़ालिकल मुस्लिमा, हम्म, ज़ानैकल मुस्लिमैनी, गई निकल, ज़ैनी नहीं है, नहीं आएगा ना। ज़ैनिकल, ठीक है। जी, ठीक। ज़ैनिकल मुस्लिमैनी, हम्म, उलाइकल मुस्लिमैनी, हाँ, इधर मुस्लिमीना, लाई थी मुस्लिम, उलाइकल पर तुम्हारा मुस्लिमीना, लाई का ही आना था। ठीक है, टाइपिंग एरर है। ठीक। जर में कीजिए। ज़ालिकल मुस्लिमी, हम्म, ज़ैनिकल मुस्लिमीन, मीना, हम्म, मुस्लिमैनी, ज़ैनिकल हाँ, मुस्लिमैनी, करना है ना। उला लाई नहीं आएगी। जी, हाँ, नहीं, उलाइकल मुस्लिमीना। ठीक है, गुड। चलें, बारकल्लाहु फीकी। ट्रांसलेशन बड़ी समझ कर आप लोगों ने करनी है, तो कुछ पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। मुशानुल जमा मुकस्सर आकिल होने की सूरत में इसम इशारा वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों तरह लाया जा सकता है। इसम इशारा के बाद जो मुशारुल है वो जमा मुकस्सर है, ब्रोकन प्लूरल है आकिल की। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसम इशारा वाहिद मुज़क्कर भी ला सकते हैं और वाहिद मुअन्नस, दोनों तरह से ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तिल कर रसूलु, तिल का वाहिद मुअन्नस का इशारा है बईद के। अर रसूलु जमा मुकस्सर है, ब्रोकन प्लूरल है, वाहिद इसम इसका रसूल रसूलुन है। ट्रांसलेशन क्या है? ये रसूल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तिल का तो बईद का इशारा है और ट्रांसलेशन में आ रहा है ये। तो यहाँ इस बात को याद रखिएगा कि अरब में एक उसलूब है कि जब किसी चीज को इम्पोर्टेंस देनी होती है, उसकी अहमियत बढ़ानी होती है, तो वहां पर वो इशारा दूर का लेकर आते हैं। आगे देखिए, मुशारुन अलैह जमा मुकस्सर गैर आकिल होने की सूरत में इसम इशारा वाहिद मुअन्नस लाया जाता है। अब हमारे पास अगर इसम इशारा के बाद हमें मुशारुन अलैह जमा मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल मिल रहा है गैर आकिल की, तो वहां हम इसम इशारा वाहिद मुअन्नस का लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तिलकन नवाफिजु, तिल का इसम इशारा वाहिद मुअन्नस का बईद का। नवाफिजु जमा है नाफिजतुन की, वो खिड़कियां। सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा, तिलकल अय्यामु, तिल का इसम इशारा वाहिद मुअन्नस का बईद। अय्यामु यौमुन की जमा है, जमा मुकस्सर, वो दिन। अब यहाँ एक और पॉइंट नोट करें, किसी भी चीज की अहमियत इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दालिकल किताबु, दालिका इसम इशारा बईद का वाहिद मुजक्कर के लिए लेकर अल किताबु मुशारुन अलैह। अब ट्रांसलेशन क्या है? ये अजीमुशान किताब। देखिए आप कि यहाँ पर दालिकल किताबु, इधर अजीमुशान के लिए कोई लफ्ज नहीं आया, कोई इसम नहीं आया, लेकिन ट्रांसलेशन में ये आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किताब जो कि कुरान मजीद की तरफ इसका इशारा है, तो उसकी तरफ किया जा रहा है इशारा, इसलिए ट्रांसलेशन में और दूर का इशारा लेकर आए हैं। तो क्या ट्रांसलेशन हुई? ये अजीमुशान किताब। मुरक्कब इशारी का जुमले में मुकाम। अब मुरक्कब इशारी जुमले में कैसे कैसे आता है? ये मुब्तदा बनकर आता है, ये हरफ जर के बाद मिलेगा हमें, ये खबर नहीं बनती। मुरक्कब इशारी मुब्तदा तो बनते हैं लेकिन ये खबर नहीं बनते। ज़र्फ और मुज़ाफ के बाद मुज़ाफ इलैह के मकामात पर आ सकता है। ये ज़र्फ और मुज़ाफ, ये आप नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे, तो ये पॉइंट आपको वहां पर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा प्रैक्टिस में। आप इसको सिर्फ लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा,
हाज़ल क़लमु जदीदुन, हाज़ा इसम इशारा है वाहिद मुज़क्कर का करीब है, अल क़लमु मुशारुन अलैह है। अब इस मुरक्कब की अराबी हालत क्या होगी? ये हालत रफ़ा में है। क्यों? क्योंकि मुशारुन अलैह हमें एराब बता रहा है कि इस वक्त वो मरफू है। उसी तरह अब इसम इशारा जो कि है हाजा, उसका एराब भी मरफू है। हाजल कलमु इशारा, इसम इशारा और मुशारुन अलैह। जदीदुन ये मुफरद इसम है। अब हम पहले जदीदुन को देखते हैं, ये क्या है। जदीदुन एक मुज़क्कर इसम है, ये वाहिद है, ये अब इसी तरह अब हम अपने मुरक्कब इशारी को देखते हैं कि वो मुज़क्कर के लिए आया है, ठीक है। कलम वो मुज़क्कर है ना, तो इशारा भी मुज़क्कर का आया उसके साथ। अब कलम वो वाहिद है, उसके साथ इशारा भी वाहिद आया, तो फिर हमारा पूरा मुरक्कब इशारी मुज़क्कर वाहिद। अब वुसअत क्या है? वुसअत मारफा है, क्योंकि इसम इशारा भी मारफा है और मुशारुन अलैह भी मौरफ बिलाम इसम है। जदीदुन ये एक नकरा इसम है। एराब हाज़ल क़लमु मुशारुन अलैह हालत रफ़ा में है, तो पूरा मुरक्कब भी मरफू हुआ हालत रफ़ा में। जदीदुन ये भी हालत रफ़ा में है। अब हाज़ल क़लमु ये क्या बन रहा है? ये यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है, क्योंकि ये मुब्तदा की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ये मारफा है और हालत रफ़ा में है। इसी तरह जदीदुन मुफरद इसम जो कि नकरा है और हालत रफ़ा में है, ये यहाँ पर खबर बन रहा है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? हाज़ल कलमु ये कलम, जदीदुन नया है। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम मुनासिब करीम का इशारा इस्तेमाल करेंगे। अल जिदारु ये क्या है? ये मुज़क्कर इसम है, ये वाहिद है, फिर इसकी कैपेसिटी मारफा है और इसका एराब रफ़ा है। अब हमने इन चारों चीज़ों को देखते हुए इशारा लेकर आना है। तो हम देखेंगे कि जिन्स और अदद, अस्मा इशारा हमारे जो वाहिद के हैं, ये पूरा चार्ट हमारा हालत रफ़ा का है अभी, ठीक? जो मैंने इस साइट पर पेस्ट कर दिया आपकी आसानी के लिए। और ये मरफू अस्मा इशारा है, ठीक? ये चार्ट पूरा हालत रफ़ा का है। और इसम अस्मा इशारा आप सबको मालूम है कि ये मारफा होते हैं। पीछे अब हमें मुज़क्कर वाहिद के लिए इसम इशारा लेकर आना है। तो हम अपने चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास इसम इशारा है हाज़ा, तो हम ले आएँगे हाज़ा, ठीक है? हाज़ा इसम इशारा प्लस मुशारुन अलैह, तो हाज़ल जिदारु, अल जिदारु क्या है? मुअर्रिफ बिलाम इसम, तो ये मुशारुन अलैह बन रहा है। तो ये पूरा हमारा मुरक्कब नाकिस मुरक्कब इशारी बन रहा है। हाज़ा ये, अल जिदारु दीवार, ये दीवार। आगे देखिएगा, हमारे पास इसम आया है अन्निसाउ, ये क्या है? ये मुअन्नस है, अदद जमा है, कैपेसिटी मारफा है, स्टेटस रफा है। अब हमें इसके लिए इसम इशारा लेकर आना है जो कि मुअन्नस का होगा, जमा का होगा। और क्योंकि इस अस्मा इशारा मारफा है और हालत रफा में है, ये हमारे पास चार्ट जो है हमारा। तो अब हमने देखा अपने चार्ट को, तो हमें वहां पे इशारा मिला हाज़िही। हमने अपने चार्ट को देखा तो हमें वहां पे इशारा मिला हाउलाई। अब ये क्या बन गया? हाउलाई निसाउ, हाउलाई इसम इशारा, अन निसाउ मुशारुन अलैह, ये बन गया मुरक्कब नाकिस जो कि मुरक्कब इशारी है क्योंकि इशारे का इस्तेमाल हो रहा है। हाउलाई ये, अन निसाउ औरतें, ये औरतें। आगे देखिएगा, अल बिंतु, अल बिंतु मुअन्नस इसम है, वाहिद है, कैपेसिटी
मार्फा है और स्टेटस रफा है। अब हमें इसी के साथ एक इशारा लेकर आना है करीब का, तो वो जो कि मुअन्नस होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए, और मार्फा और रफा तो है ही। तो हमने अपने चार्ट को देखा तो हमें वहाँ इशारा मिला हाज़िही। तो अब ये इसम इशारा और अल बिंतु जो कि मौरिफ बिलाम इसम है, जो कि वुसअत में, कैपेसिटी में अपने इशारे की तरफ लीड कर रहा है, फॉलो कर रहा है उसको। तो ये इसम इशारा प्लस मुशारुन इलैह मुरक्कब इशारी, हाज़िही ये, अल बिंतु लड़की, ये लड़की। आगे देखिए, अल गुरफतानी, अब ये किस तरह का इसम है, इसको खोलते हैं। ये मुअन्नस इसम है, मुसन्ना है, डुअल है, कैपेसिटी मार्फा, स्टेटस रफा। अब हमें अल गुरफतानी को देखते हुए जो कि मुअन्नस और मुसन्ना है अदद में, इसम इशारा लेकर आना है। तो हम देखते हैं हम कौन सा इशारा लेके आते हैं चार्ट में से, हातानी। अब ये हमारा मुरक्कब नाकिस तैयार है, हातानिल गुरफतानी। अल गुरफतानी मुसन्ना है और देखिए ये मार्फा है, तो ये मुशारुन इलैह बन रहा है, ठीक है, मार्फा होने की वजह से। हातानी ये, अल गुरफतानी दो कमरे, डुअल है ना, ये दो कमरे। नेक्स्ट देख, अल मुस्लिमूना, ये मुज़क्कर इसम है, जमा है, मार्फा और रफा है, हालत रफा में है। अब हमें इसको देखते हुए कि ये एक मुज़क्कर जमा का इशारा लेकर आना है। तो हम अपने चार्ट को देखेंगे तो हमारे पास वहां पे इशारा आएगा हाउलाई। तो ये हमारा मुरक्कब इशारी तैयार है, क्योंकि अल मुस्लिमूना भी मार्फा इसम है। तो इशारा के बाद जब हमें मार्फा इसम मिलेगा तो वो मुरक्कब इशारी बन जाएगा। ट्रांसलेशन क्या, अल मुस्लिमूना मुसलमान, ये मुसलमान। आगे देखिएगा, अल बुयूतु, अल बुयूतु क्या है, इसको समझ लीजिए। ये गैर आकिल है, बैतुन की जमा है घर, और ये मुज़क्कर है, जमा है, मार्फा और रफा तो है। अब हमें मुज़क्कर और जमा देखते हुए ये चीज को, अपने पॉइंट को रिवाइज करना है कि जब भी गैर आकिल की जमा आएगी तो उसके लिए इशारा हमें कौन सा लाना है, मुअन्नस का, और वो भी कौन सा, वाहिद का। ठीक है, अब हम अपने चार्ट को देखेंगे तो वाहिद मुअन्नस का इशारा क्या मिलेगा हमें, हाज़िही, हाज़िहिल बुयूतु। ये हमारा मुरक्कब इशारी तैयार है, हाज़िही ये, अल बुयूतु घर, ये घर है। आगे देखते हैं, अत्तालिबु मुज़क्कर इसम है, वाहिद है, मारफा है और रफा है। अब हम इसके लिए जो इसम इशारा लाएंगे वो होना चाहिए मुज़क्कर और वाहिद। तो क्वेश्चन हमारा है, मुनासिब दूर का इशारा इस्तेमाल कीजिए। अब हमें यहाँ पर दूर के इशारे लेकर आने, तो हम देखेंगे कि मुज़क्कर वाहिद के लिए दूर का इशारा कौन सा है, तो वो है ज़ालिका। तो हम ले आएंगे ज़ालिका, तो हमारा मुरक्कब इशारी तैयार है, हमारा कंस्ट्रक्शन हो गई कंप्लीट। ठीक, ज़ालिका वो, तालिबु तालिब इल्म, वो तालिब इल्म। आई होप कि आप पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें मुरक्कब इशारे की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। नेक्स्ट, अल मुअल्लिमतानी मुअन्नस इसम है, डुअल है, मार्फा है, हालत और रफा में है। अब हमें एक मुअन्नस इसम इशारा चाहिए जो कि मुसन्ना का हो, ठीक है, मार्फा भी और हालत रफा में होना चाहिए वो। हम कौन सा इसम इशारा लेकर आएंगे, चार्ट को देखेंगे तो हमें मिलेगा तानिका, ठीक है। तो तानिका इसम इशारा प्लस मुशारुन इलैह मिलकर हमारा बन गया मुरक्कब इशारी। कंस्ट्रक्शन तैयार है हमारा मुरक्कब। तो
तानी का वो, मोलिमतानी दोस्तानियां, वो दोस्तानियां। अल हदाइकु, अल हदाइकु क्या है? ये जमा मुकस्सर है हदीकतुन की, जमा मुकस्सर गैर के, मुज़क्कर है, जमा है, मारिफा है और हालत रफ़ा में। तो अब हमें इस चीज को ज़हन में रखना है कि ये जमा गैर आकिल आ गई है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर वाहिद मुअन्नस का इशारा लेकर आएंगे बैत का, ठीक है? तो वो क्या है? तिल का, तिल कल हदाइकु, ये मुरक्कब इशारी हमारा तैयार है। तिल का वो, अल हदाइकु बागात, वो बागात, नाजिहुना, नाजिहुना मुज़क्कर इसम है, जमा है, मार्फा इसम है और हालत रफा में है। अब हमें इसको देखते हुए एक मुज़क्कर और जमा के लिए इसम इशारा लेकर आना है। तो वो है दूर का इशारा उलाइका, ठीक है? अब हम उसको ले आते हैं, उलाइकन नाजिहूना, ये हमारा मुरक्कब इशारी कंस्ट्रक्शन तैयार है। उलाइका वो, नाजिहूना कामयाब होने वाले, वो कामयाब होने वाले। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक चार्ट बनाकर लाई हूँ, उसे आप चार्ट कह लीजिए या आप उससे समझ लीजिए कि हम हमारे सामने इसम इशारा कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है? तो पहला हम देखते हैं हमारे पास क्या है। हाजल किताबु, हाजा इसम इशारा करीब का वाहिद मुज़क्कर के लिए, अल किताबु मुशारुन लह, मार्फा है ना, तो मुशारुन लह बनेगा क्योंकि वसत में ये अपने इशारे को फॉलो करता है और जिन्स अदब और अराब में मुताबिकत होती है। हाजल किताबु, हाजा हमारा ये बन गया पूरा मुरक्कब इशारी। अब ट्रांसलेशन क्या है? ये किताब। अब एक और देखिए साथ में, हाजा किताबुन, हाजा क्या है? इसम इशारा, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया ना, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इशारा है करीब का। हा से शुरू होने वाले जितने इशारे हैं वो करीब के हैं। किताबुन, ये नकरा इसम आ गया यहाँ पर, हालत रफा में है। अब यहाँ पर हाजा का स्टेटस क्या होगा? पहले में तो हमारे पास हाजा के बाद मौरिफ विलाम इसम मिला था, तो वो हाजा इसम इशारा और उसके बाद मुशारुन अलैह मुरक्कब इशारी बन गया। अब यहाँ पर हाजा क्या है? यहाँ पर हाजा हमारा मुब्तदा और किताबुन खबर है। देखिए, हाजा मार्फा इसम है और ये हालत रफा में है। किताबुन नकरा इसम है और हालत रफा में है और ये खबर बनने की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी कर रहे हैं। तो ये मुब्तदा और खबर ये बन गया मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया, जबकि हाजल किताबु मुरक्कब नाकिस, ठीक है? तो हाजा किताबुन, इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे फिर? ये किताब है। देखिए फर्क है ना मुरक्कब नाकिस की ट्रांसलेशन में और कंस्ट्रक्शन में भी। इसी तरह आपको देखिए मुरक्कब ताम में आगे जुमला इस्मिया जो आया है उसकी ट्रांसलेशन को देखिएगा। अब आपने फर्क याद रखना है कि अगर आपको इसम इशारा के बाद कोई भी मौरिफ बिलाम इसम मिलता है तो वो वहां पर मुरक्कब इशारी बन रहा है, और अगर आपको इसम इशारा के बाद कोई नकरा इसम मिलेगा तो वो वहां पर फिर जो है इसम इशारा मुब्तदा की पोजीशन पर होगा। एक और एग्जांपल समझिएगा, हाजल किताबु जदीदुन। अब हाजल किताबु मुरक्कब इशारी है हमारे पास और जदीदुन नकरा इसम आ रहा है, हालत रफा में है, तो ये खबर बनने की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। और हाजल किताबु मार्फा है, के क्योंकि हाजा हमारा जो इसम इशारा है वो तो है ही मार्फा, और अल किताबु भी आगे मार्फा है, तो इशारा मुशारुन अलैह मिलकर पूरा मुरक्कब इशारी मार्फा और अल किताबु, देखिएगा बू मुशारुन अलैह मरफू है, तो इसी तरह हमारा इसम इशारा भी मरफू होगा। तो क्योंकि मुरक्कब इशारी इस वक्त हालत रफा में है तो ये मुब्तदा बन सकता है और आगे जदीदुन नकरा मरफू इसम इसकी खबर है। तो ये मुब्तदा खबर मिलकर मुरक्कब ताम
यानी जुमला इस्मिया। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हाजल किताबु, ये किताब, जदीदुन, नई है। जी, आगे देखिएगा। हाजल किताबुल जदीदु, अब यहाँ गौर करें। हाजा इसम इशारा, अल किताबु मौरिफ बिल लाम इसम है हालत रफा में। तो अल जदीदु ये क्या है? ये भी एक मौरिफ बिल लाम इसम है, मारफा इसम है, हालत रफा में है। अगर हम यहाँ पर इस चीज को गौर करें तो अल किताबु, ठीक है, अल किताबु, जब ये जो इसके साथ आगे हमारे पास आ रहा है अल जदीदु, ये इसकी सिफ्त बन रही है। अल किताबु मौसूफ और अल जदीदु इसकी सिफ्त है। देखिए सिफ्त अपने मौसूफ को फोर एस्पेक्ट्स जो हैं, चारों पहलुओं में उसको फॉलो कर रही है। अल किताबु रफा है तो सिफ्त भी रफा है, अल किताबु मारफा है तो सिफ्त भी मारफा है, अल किताबु वाहिद मुजक्कर इसम है तो अल जदीदु भी वाहिद मुजक्कर इसम है। तो अब ये सिफ्त मौसूफ मिलकर ये क्या बने? ये मुशारुन अलैह बन गए, ठीक है। तो हाजल किताबु, अब इसका मुशारुन अलैह क्या है? ये एक मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, सिफ्त और मौसूफ मिलकर मुरक्कब तौसीफी बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मुरक्कब इशारी। ट्रांसलेशन क्या होगी? अब मुरक्कब तौसीफी की जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उर्दू में सिफ्त पहले आती है, मौसूफ बाद में। तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे हाजल किताबुल जदीदु, अल किताबुल जदीदु नई किताब, हाजल किताबुल जदीदु ये नई किताब ना। फिर चलते हैं, हाजा किताबुन जदीदुन, हाजा इसम इशारा है, आगे इसके किताबुन जदीदुन नकरा इसम है, और किताबुन जदीदुन क्या है? किताबुन मौसूफ है और जदीदुन इसकी सिफ्त है। देखिए किताब हालत रफा में है तो जदीदुन भी हालत रफा में है। किताब का जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी वुसअत नकरा है तो सिफ्त भी नकरा है। इसी तरह किताब यानी मौसूफ हमारा वाहिद मुजक्कर है तो सिफ्त भी वाहिद मुजक्कर है। अब ये मुरक्कब तौसीफी जो कि नकरा है इस वक्त, ये यहाँ पर और हालत रफा में खबर बनेगा। हाजा मुब्तदा, किताबुन जदीदुन खबर, यानी मुरक्कब तौसीफी अब खबर की पोजीशन पर आ गया यहाँ पर। तो ये मुब्तदा खबर मिलकर मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया। ट्रांसलेशन क्या होगी? ये नई किताब है, ठीक है। अब आपने देखा कि जब हमारे पास मुरक्कब इशारी जो है वो आपको मुब्तदा बनकर भी मिला, ठीक है, और आपको इसम इशारा खाली वो भी मुब्तदा बनकर मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसम इशारा मुब्तदा की पोजीशन पर है, यहाँ मुरक्कब इशारी पूरा मुब्तदा की पोजीशन पर है। यहाँ हमारे पास जो मुरक्कब तौसीफी था वो मुशारुन अलैह करना, और यहाँ पे मुरक्कब तौसीफी नकरा होकर मरफू हालत में खबर बन रहा है, और यहाँ भी आपके पास हाजा मुब्तदा है। देखिए कितनी वेरिएशन है। तो यहाँ पर हम आज का अपना लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने मुरक्कब इशारी डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन सीखा। यहाँ पर अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।